الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پیارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکثرت بہدیت درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میں نے 11 بجے کا آپ سے وقت مانگا تھا، اللہ نے چاہا 16 منٹ باقی ہیں. میری نیت بھی ہے انشاءاللہ 11 بجے ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، کیونکہ آپ بھی یہاں موجود ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے. ظاہری بات ہے صبح اپنے کام کاج بھی کرنے ہوں گے، لیکن آج کی رات اگر ساری رات عبادت گزار دی جائے، کیونکہ یہ سال کے بعد رات آتی ہے. بیان بہت لمبا ہے لیکن میں چند باتیں آپ کے دامن میں گوش گزار کروں گا. بچے تھوڑا سا دامن فرمائیں، خاموش رہیے گا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ایمان تازہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا. کون سا روز ہوگا؟ قیامت کا روز کس کو بولتے ہیں؟ دن. قیامت کا دن ہوگا. نفس و نفسی کا عالم ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی. سورج 7 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. نامہ اعمال میزان عمل پر تل رہے ہوں گے. تمام قومیں میزان عمل پر اپنے اپنے اعمال تلوا رہی ہوں گی. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کروا رہے ہیں. ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے، پریشانی کا عالم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام پریشان لگ رہے ہیں. عرض کی آقا ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. یہ ضمن بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کون سی بات ہے؟ عرض کی آقا جب بھی آپ کی یاد سلاتی ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، جب بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں آقا آپ کو تلاش کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی آقا ایک اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے کہ جب بھی آپ کے دیدار کی طلب ہوتی ہے، آپ کی خوشبو سونگ سونگ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آقا آپ کی زیارت کر لیتے ہیں.
आका एक बात ने परेशान कर रखा है। मेरे आका ने फरमाया गुलाम बता कौन सी बात है। अर्ज करते हैं आका आज दुनिया में जब भी आपकी याद सताती है, आपको देख लेते हैं आका, वो मैदान महशर में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के हिसाब से हजरत आदम से लेकर ता क़यामत तक उम्मतें होंगी। आका वहां इतनी भीड़ में जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी याद सताएगी, आका आपको कहां तलाश कर, आका आपको कहां तलाश करूंगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम सुन ले, दुनिया में मुझे जैसे मोहब्बत से ढूंढ कर मेरा दीदार कर लेते हो, मैदान महशर में ऐसी जगह होगी वहां पर मुझे तलाश कर लेना। अब ये रसूल अर्ज़ करते हैं आका कौन सी जगह। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम अगर मुझे ढूंढना हो तो पुल सिरात पर देख लेना, मुझे मिलना हो पुल सिरात पर देख लेना। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, मेरे आका वहां से अपने गुलामों को गुजार रहे होंगे। अर्ज़ किया आका अगर वहां पे भी ना मिले, मेरे आका ने फरमाया कि हौज़े कौसर पर देख लेना, वहां अपने गुलाम प्यासों को जाम भर भर कर मैं महबूब पिला रहा हूँ। अर्ज़ किया आका अगर वहां भी ना मिले, फरमाए मैदान अमल पर देख लेना, मैं मैदान अमल पर जिस गुलाम के गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होगी, मैं अपने गुलामों के नामे आमाल के अंदर नेकियों का इजाफा कर होगा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो साहबी रसूल तड़प उठे। अर्ज़ किया आका अगर आपका गुलाम फंस जाए, अगर आपके गुलाम की हालत ये हो कि मैदान अमल पर रोक लिया जाए या पुल सिरात पर रोक लिया जाए, तो मैं आका आपको कैसे तलाश करूं। मेरा आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम परेशान न हो, परेशान न हो, तू मेरा गुलाम है। जिस तरह आज दुनिया में रहते हुए तू मुझे ढूंढ लेता है, दिन क़यामत के रोज मैदाने महशर के अंदर गुलाम होकर मुस्तफा को याद करना, मुस्तफा वहां भी गुलामों की मदद फरमाएंगे। अब गुलामों की मदद फरमाएंगे तो मैदान अमल पर एक शख्स आएगा कि जिसका अमल तुल रहा होगा, उसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करेंगे इलाहुल आलमीन इस बंदे की नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, क्या किया जाए। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को क्योंकि नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबज हुल्ला पहना होगा, सबज जुब्बा पहना होगा, जल्दी जल्दी मिंबर से नीचे तशरीफ लाएंगे। आका क्योंकि गुलामों को शफाअत करवा रहे होंगे ना, अपने गुलामों की शफाअत में मसरूफ होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे जल्दी जल्दी कदम पड़ रखेंगे और मेरा आका इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आका के मुबारक कंधे पर हाथ रख के कहेंगे मेरे मुस्तफा ए प्यारे मोहम्मद, वो देखिए आपका गुलाम जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी फरिश्तों के पास पहुंच जाएंगे। फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्तों रुक जाओ, मेरे गुलाम को लेकर कहां जा रहे हो। गुलाम फरिश्ते अर्ज करेंगे मदीने के ताजदार आका, रब का हुक्म ये है कि रब का कानून ये है जिसके नामा अमाल में नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, उसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाएंगे फरिश्तों ठहर जाओ, नेकियां कम है, मैं देखना चाहता हूं मेरे गुलाम की
का हुक्म होगा मेरे महबूब की मानो दोबारा मैदान अमल पर आ जाओ, दोबारा मैदान अमल पे आ जाओ। फरिश्ते लेकर दोबारा आ जाएंगे। जब दोबारा वापिस आएंगे तो मैदान अमल पर जब तराजू पर नेकियां रखेंगे तो फिर नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे। तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ सोने चेहरे वाले, हमने कहा नहीं था कि इसकी नेकियां कम है गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है गुनाह ज्यादा है, अब क्या किया जाए? मेरा आका फरमाएंगे फरिश्तों अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी फैसला नहीं हुआ। मेरा आका इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जेब से कागज निकालेंगे, उसको नेकियों के पलड़े में रखेंगे। जैसे ही नेकियों के पलड़े में वो कागज रखेंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियां बढ़ जाएंगी। वो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे इलाहुल आलमीन नेकियां बढ़ गई, गुनाह कम पड़ गए। अल्लाह फरमाएगा मेरे इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, वो गुलाम जन्नत में नहीं जाएगा, मुस्तफा का दामन पकड़ लेगा। वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, मुस्तफा का दामन पकड़ कर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ सोने चेहरे वाले, बता आप कौन है, बताइए आप कौन है? मुस्तफा फरमाएंगे मैं तेरा महबूब हूँ, तेरा आका हूँ, जिसका तूने कलमा पढ़ा है। अर्ज़ करेंगे आका कि ये क्या था कि जिसकी वजह से मेरी नेकियां बढ़ गई, गुनाह कब बढ़ गए? मेरे मुस्तफा फरमाएंगे मेरे गुलाम, दुनिया में रहते हुए तूने मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ा था, तेरा वो दुरूद है आज तेरे काम आ गया। अरे मुस्तफा के गुलाम दुरूद पढ़े तो मैदान महशर में काम आ जाए। अरे जो मुस्तफा का गुलाम कसरत से मुस्तफा की ज़ात पर दुरूद पढ़े, क्या मेरे मुस्तफा दिल की आमद के रोज उसकी शफाअत नहीं कर पाएंगे? अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए गौसिया। जो एक बार मुस्तफा की ज़ात पर दुरूद पढ़े, मेरे मुस्तफा उसकी शफाअत करवाए। अरे जो सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दे, रब उसे कैसे बुलंदी अता फरमाएगा? सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दे, अरे मैदान महशर में रब ताला उसे कैसी शान अता फरमाएगा?